पढ़ाई करिए कि माइक बंद कर लो अपने शशांक। Okay, good afternoon, class. We are starting a new topic, that is permutations. Okay. In the previous class, I have told you about counting principles. There are two fundamental counting principles that we have to use. One is called to be as sum rule, and the other one is known to be as product rule. These are the two fundamental counting techniques. Okay, that is sum rule method and product rule method. So in previous class we have discussed some problems related to this sum rule method and also product rule method. Okay, now this sum rule and product rule can further be extended to define these two terms, that is permutations and combinations. Okay, so out of these two we are going to talk about permutations first. So here we are. First of all, what is permutation? So here we are defining a permutation of a set S is an ordered arrangement of the elements of S. Out of this definition, this one is the main point, that is ordered arrangement. Whenever we are saying ordered arrangement, it means the position of element also matters. How we are saying this? It will be more clear using this example. Here we are saying first, in other words, it is a sequence containing every element of S exactly once. Here we are saying sequence because this will be ordered arrangement. So that's why we are saying sequence. Okay. For example, if you consider the set 1, 2, 3, then one sequence can be 3, 1, 2. Just for example, we can take one sequence and that sequence is suppose 3, 1, 2. Then this sequence 3, 1, 2 is called a permutation of S. Okay, the sequence 3, 1, 2 is called one permutation of this set S. Therefore, for this example, that is for the set S equals to 1, 2, 3, there will be 6 different permutations. And these are 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2,
and 3, 2, 1. Okay, these all are the ordered arrangements. Here the order of element will have their significance, because 2, 3, 1 is different from 2, 1, 3. In the same way, 1, 2, 3 is different from 1, 3, 2, and so on. Okay, so therefore we will have total 6 different permutations of this set S equals to 1, 2, 3. So this is about the definition of permutation. So we can simply say that the permutation of a set S is an ordered arrangement of the elements for the given set. Got that? Anyone having doubts in this? Yes? Anyone? Just raise your hand. I can unmute you. Anyone? So, is it clear to you? Whenever we are saying permutation, it means it is an ordered arrangement of the elements for the given set. Okay? तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया, अगर कोई सेट S है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं, तो इसके लिए जो पॉसिबल परम्यूटेशंस होंगे वो होगा 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. These are the 6 different permutations of the set S equals to 1, 2, 3. I hope it is clear to all of you. Anyone having doubts in this? So here, moving to next. So till now we have defined what is permutation. Now there is another term that is called to be as R permutation. Okay. What is this R permutation? An R permutation of a set S is an ordered arrangement of, earlier we have written order arrangement of S. Now we are writing ordered arrangement of R distinct elements. Okay, here we are saying that an R permutation of a set S is an ordered arrangement of R distinct elements of S. Okay, and in order to this to be well defined, what is this? Here we are saying this R will be between 0 to S, where S denote number of element in the set S. ओके, जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था S इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है। तो R की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी 0 से 3 के बीच में। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो 0 होगा तो 0 परम्यूटेशन, 1 होगा तो 1 परम्यूटेशन, 2 होगा तो 2 परम्यूटेशन, 3 होगा तो 3 परम्यूटेशन. Okay, let us say here we are saying there is only one 0 permutation. Sorry, there is only one 0 permutation of any set, and that is called to be as empty sequence or empty set. Okay, whenever we are saying 0 permutation means an arrangement having 0 elements or 0 distinct elements. Okay, 0 permutation means an ordered arrangement of 0 distinct elements, and that is what? Empty sequence.
नाउ अगेन वी आर टेकिंग द सेम प्रॉब्लम, लेट अस से s इक्वल्स टू 1 2 3। तो इसके लिए जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस पॉसिबल 3 1 हो सकता है, and this 3 1 sequence is called to be as 2 permutation. It is called to be as 2 permutation because here it is ordered arrangement of two distinct elements of set S, and that is 3 and 1. Okay, in the same way the sequence 3 2 1 is both a permutation, permutation भी है, क्यों permutation है, because it is considering every element, and 3 permutation of S. 3 permutation क्यों, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, since mod S equals to 3. Okay, so if we consider this set S equals to 1 2 3, and we have to write its different 2 permutations. Okay, so whenever we are saying 2 permutations means we have to consider for ordered arrangements having 2 distinct elements, and therefore there will be total 6 different 2 permutations of S, and that is 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2. Except these 6, there is no any other value. Okay, so this is the definition of R permutation. Whenever we are saying permutation, we are just talking about ordered arrangement of the entire set. And whenever we are saying R permutation, we are concerned with ordered arrangement of only R distinct elements of set S. What that? Anyone having doubts in this, you can ask. Yes, tell me. Any queries up to here? Yes? Anyone? No doubts? Yes, Vartika, but in subset or set, the order of element does not matter. But in case of permutation, the order of elements matters. Okay, so that's why we cannot say it is simply subset, क्योंकि सबसेट में ऑर्डर कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम परम्यूटेशन जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऑर्डर को कंसिडर कर रहे हैं. 1 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2 1, लेकिन सबसेट की बात करेंगे तो हम केवल 1 2 लिख सकते हैं. देयर इज नो नीड टू राइट अगेन 2 1. ओके, बिकॉज 1 2 and 2 1 both are same in context to subset, but in context to permutation that will be different. Got that? Asta, whether you want to ask something? Asta. Okay, we can move further. So this is about the definition of R permutation. Now let us say by these two definitions that we have done earlier, we usually are interested in the number of such permutations without listing them. तो अभी तक हमने जो भी बताया आपको, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि 2 परम्यूटेशंस कितने होंगे, तो हमने उसको लिस्ट आउट करके फिर काउंट कर लिया कि 6 जो हैं टोटल 6 डिफरेंट 2 परम्यूटेशंस होंगे.
ठीक है, लेकिन वेन एवर वी डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट आउट देम, ओके, तो दिस thing of calculation can be done directly by the number of permutations of n objects taken r at a time, and this is denoted by npr. ठीक है, तो हम ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, p ब्रैकेट में n कॉमा r, इसी को हम, आपने पढ़ा होगा 10th में 12th में, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n सुपरस्क्रिप्ट में p और सबस्क्रिप्ट में r. Either you can write this way or you can write this way, both are similar. या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, कुछ जगह यहाँ भी ऐसे भी लिखा होगा, कुछ जगह ये भी लिखा होगा, तो ये सभी डिफरेंट नोटेशंस है, यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम. ओके, हियर वी आर फॉलोइंग दिस वन, p ब्रैकेट में n कॉमा r, so this is read to be as npr. Okay, and what is npr? The npr denote the number of permutations of n objects taken r at a time. npr denotes the number of permutations of n objects taken r at a time. ठीक है, and this quantity npr is equals to n. n क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं एक टाइम पे, तो n ऑब्जेक्ट्स के लिए कितने परम्यूटेशंस हो जाएंगे? n परम्यूटेशंस. ठीक है, और अगर हम 2 आइटम लेते हैं एक साथ में, तो उस केस में टोटल कितने परम्यूटेशंस होंगे? n-1. अगर हम 3 आइटम्स लेते हैं एक साथ में, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स taken 3 at a time, and that will be n-2. In the same way, r plus 1. ठीक है, तो therefore the total number of permutations of n objects taken r at a time will be defined to be as n factorial divided by n minus r factorial. क्योंकि ये जो पार्ट है, इसको हम अगर n फैक्टोरियल लिख रहे हैं, तो उस केस में हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू सो ऑन इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यू विल गेट दिस वन, ये एंटायर क्वांटिटी. ओके, so by this way we have defined NPR, and this NPR is equivalent to n factorial divided by n minus r factorial, where NPR denotes the number of permutations. Number of permutations का मतलब number of ordered arrangements of n objects taken r at a time. ठीक है, and that will be equals to n factorial upon n minus r factorial. Any queries up to here you can ask? Anyone? Yes, tell me. Satish. Okay, just wait. Yes, you can ask, Satish. सतीश झा, बोलो. सर अगर n और r की वैल्यू सेम हो तब? कोई दिक्कत नहीं है, अगर n और r की वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या होगा?
जहाँ पे r है वहाँ भी n हो जाएगा, और तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ओके, तो n और r की वैल्यू सेम होने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट ए टाइम। गॉट दैट? यानी कि अगर मान लो आपके पास 4 डिजिट्स हैं और आपको 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, बोलो। अगर आपके पास 4 डिजिट्स हैं और वी आर आस्किंग हाउ मेनी 4 डिजिट डिफरेंट नंबर्स आर पॉसिबल, that is the example of when n equals to r, and that is n factorial. So therefore the answer will be 4 factorial. ओके, कैसे? तो इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, तो ये 4 प्लेसेज हो गए, ठीक है। तो हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो इस प्लेस पे चारों में से कोई एक वैल्यू आएगी। इस प्लेस पे जब आपने एक को रख दिया और रिपीटिशन हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी, और यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही डिजिट बचेगा। एंड दिस इज व्हाट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड दैट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर वी आर कंसिडरिंग फॉर n इक्वल्स टू r। ओके, तो अभी ये आगे आएगा ये सारी चीजें। तो मैंने आपको बताया कि r परम्यूटेशन क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी आर डिफाइनिंग दिस r परम्यूटेशन। सो इज इट क्लियर? r परम्यूटेशन का सिर्फ इतना मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, एंड दिस विल बी डिनोटेड बाय npr, और npr की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। Any queries up to here you can ask. Anyone? Yes. Okay. Is it clear? Now, we can move further. Here we are. Let us take one example for this. Suppose this one. Find the number of permutations of 6 objects A, B, C, D, E, F taken 3 at a time. और इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स यूजिंग द गिवन 6 लेटर्स A, B, C, D, E, F विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन का मतलब ये है कि इन 6 में से आप एट ए टाइम एक वैल्यू जो है एक ही बार यूज कर सकते हैं। मतलब ए अगर किसी पोजीशन पे आ गया तो किसी और पोजीशन पे ए नहीं आएगा, ठीक है, तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने पढ़ा आर परम्यूटेशन, तो यहाँ पे हम आर परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट 3 permutation of 6 objects, and that means the answer will be simply क्या होगा 6p3। वेरी सिंपल, 6p3। 6 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम हमें लेना है, दैट्स वाई 6p3। ये p क्यों लगाया, c क्यों नहीं यूज किया? तो आप एक चीज है वो आप हमेशा याद रखना, जब भी हम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमेशा वहाँ पे परम्यूटेशन यूज होता है। चलो यहाँ पे तो पूछ दिया है कि आपको परम्यूटेशन बताना है,
अगर आपको केवल ये पूछा जाता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो है, जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी इज डिफरेंट फ्रॉम ए सी बी। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी is different from ACB. Okay, that's why this will be ordered arrangement, and since this is ordered arrangement, therefore we have to always apply permutation. जब भी ordered arrangement होगा आपको permutation apply करना होगा, जब भी अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा तो हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे ऑर्डर्ड क्यों है? तो ऑर्डर्ड इसलिए है क्योंकि ए बी सी विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए सी बी, और यू कैन से बी सी ई विल बी डिफरेंट फ्रॉम ई सी बी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है लेटर्स का, उसका जो पोजीशन है वो मैटर करेगा, एंड देयरफॉर वी हैव अप्लाइड परम्यूटेशन, एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 6p3, and this will be 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial. Okay, and this will be 6 factorial divided by 3 factorial. This is what? 6 into 5 into 4 into 3 factorial और divide by 3 factorial, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 120। इसी को आप इसी प्रॉब्लम को आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो इस पोजीशन के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 6, क्योंकि इन 6 में से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब जब आपने यहाँ पे एक पोजीशन पे रख लिया तो इस पे कितनी वैल्यू रहेंगी? केवल 5, क्योंकि एक यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस होंगे। और जब इन दोनों में प्लेस कर लिया तो 6 में से हम कोई दो प्लेस कर चुके होंगे, तो इस पोजीशन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? केवल 4, एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट दिस। ओके, so therefore the answer will be 120. Okay, any queries, anyone? ओके उपेंद्र, अगर इसमें रिपीटिशन अलाउड होता तो सिंपल आंसर है, उस केस में क्या हो जाता? जो हम यहाँ पे 5 कर दे रहे हैं ड्यू टू एक्सक्लूजन, यहाँ पे भी क्या हो जाता? 6, और यहाँ पे भी क्या हो जाता? 6, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी 6 टू पावर 3, यानी कि 216। तो मैं अभी आपको एक ये रिजल्ट नोट कराऊंगा। तो परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन अलाउड ये हमेशा n रेस टू पावर r होता है, एंड परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन क्या होता है? npr। ओके, तो ये इसको आप एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। परम्यूटेशन विदाउट रिपीटिशन npr, परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन n रेस टू पावर r। इज इट क्लियर? यस, एनीवन? बोलो, कोई डाउट किसी को? शुभांशी? ओके, okay, so we are stopping here. We will continue it in the next class. Anyone having doubt? Subhansi, you have answered. Just wait.
हाँ शुभांशी, आपने क्या किया, 6c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल. ओके, जस्ट टेल मी व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस वे ऑफ आंसरिंग. क्योंकि मैं इसको देख कर नहीं बता सकता आप किस तरह से सोच रहे हो. तो जस्ट यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ and tell me what is the logic you are thinking of for solving this by this way. Yes, you can raise your hand so that I can unmute you. Subhansi. Okay, you can say. Sir, actually I selected first three words, sorry, Okay. three letters. So I used 6C3 and then I मतलब फिर हमने उन 3 नंबर्स को चेंज कर दिया और आंसर सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा, क्योंकि आज तक हमने सारे सवाल ऐसे ही किए और हमको पी वाले यूज करने की आदत नहीं हो. हमको डर लग रहा है कि अगर हमको पी वाले से कंपल्सरी करना पड़ा तो हमसे गलत हो. नहीं 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 नहीं, इसमें पी और सी में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है. एक वर्ड आप याद रखो, जब भी ऑर्डर्ड होगा आपको परम्यूटेशन अप्लाई करना है, जब भी अनऑर्डर्ड होगा आपको कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है. सिंपल सा मीनिंग है. ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि जब ऑर्डर मैटर करे. ऑर्डर मैटर करे मतलब ए बी सी इज डिफरेंट फ्रॉम ए सी बी, या 412 इज डिफरेंट फ्रॉम 421. 412 क्या हो गया 412, 421 क्या होगा 421. दोनों अलग अलग नंबर है कि नहीं. ओके, तो ये ऑर्डर्ड हो गया. ओके, तो जब भी आपको ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लेना हो आप परम्यूटेशन अप्लाई करो, जब भी आपको अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट लेना हो आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करो. एकदम सिंपल मीनिंग है इसका, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. फिर भी कभी क्या ये कंपल्सरी रहेगा कि नहीं नहीं, कंपल्सरी नहीं होगा. इट इज नॉट द कंपल्सरी कि आप जो है, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आप जो इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो इसमें आप लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हो, है ना. तो आपने बताया कि आप 6 में से 3 को सेलेक्ट कर रहे हो और उनके फिर 3 पोजीशंस के लिए फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. यही आंसर था ना आपका. यस सर. हाँ, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट मीन्स व्हाट, वी आर कंसिडरिंग द ऑर्डर. ओके, पहले आपने क्या किया, अनऑर्डर्ड कर लिया 6C3 और फिर आपने पोजीशन को कंसिडर कर लिया 3 फैक्टोरियल से. तो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द सेम आंसर. और आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है क्या कि NPR इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, R फैक्टोरियल. तो वही चीज तो आपने किया. यस सर. ओके, तो यू कैन डू आइदर वे, दैट इज नॉट डिफरेंस फॉर द आंसर्स. ओके, आगे हम इसको फॉर्मूला में बताएंगे भी, अभी इसके बाद में बताऊंगा जब कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो, कि NPR इज ऑलवेज इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाइड बाई R फैक्टोरियल. और वही तो आपने किया इस प्रॉब्लम में. यस सर. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, एनीवन एल्स. Okay, thank you class. We will meet in the next class. Thank you everyone. Okay. Yes, I will share the PDF. Others, why it is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1? हमें तो 3 ही वर्ड लेने हैं ना, आप 6 प्लेसेज ले रहे हो. We have to make a 3-letter word, not 6-letter word. Okay, so that's why there is no need to do 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and that is 6 factorial. Got that? This will be done whenever we have to find out the number of ways for 6 element taken 6 at a time. तो taken 6 at a time का मतलब क्या है, आप 6 लेटर का वर्ड बनाना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम में क्या है 3 लेटर का वर्ड. ओके, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू दिस 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, क्योंकि हमारे पास 3 ही प्लेसेज हैं. तो दैट्स व्हाई वी विल डू 6 into 5 into 4 only up to here. Okay, others. So we are stopping here. We will meet in the next class. Thank you all.